Hello students. In part 1 we already studied the Mauryan art and Asian Harappan Mohenjo-daro architecture and sculpture. Now we are going to start the Dravidian style of art in South India. Many Buddhist stupas were built in the region near the Krishna and Godavari river during the reign of Satavahan king. Satavahan king basically ruled over the Maharashtra and present Andhra Pradesh. Okay, that one you keep in your mind. They were semicircle and bell-shaped stupa of Nagarjuna Konda and Amravati, the best specimen of the Dravid style of art. Chola king adopted the Dravid style of architecture up to the great extent. Means in ancient time, especially before 1000 AD, so many stupas were built in the Doab of Krishna and Godavari region. Okay, and that was built up by the Satvana king, and they in the architecture way they were really excellent. Now let's talk about the Gupta period. Guptas basically ruled over the Magad, means present Bihar. Okay, and the architecture at that time, it was in its apex, and that's why the architecture period is called the golden period in Indian history. During the Gupta period, architecture, sculptures, painting, dancing, music flourished. Parvati temple of Jabalpur, that is the Nainwa, and Bumra, that is the Nogada, Shiv temple on, that is the Madhya Pradesh, Narsimha temple, Gop Mandir of Jamnagar, stupas, chaityas, mathas, viharas, flag and pillars are the unique example of Gupta art. Gupta period is known as the golden period of art. I told you just earlier, Gupta, Buddha statue of Sarnath, statue of Lord Vishnu of Mathura, statue of Mahavir Swami, caves of Udaygiri, and the structure of Vishnu in the form of Varaha. Okay, it is in Udaygiri cave in Orissa, are the best specimen sculpture of Gupta period. Okay, at the same time we can see the cave architecture, especially in the Western Ghat near Mumbai, Lonavala and other places. Cave architecture is considered as the man-made place of beauty. Cave of Ajanta and Ellora are in Aurangabad. एलिफेंटा केव नियर मुंबई. रियली इट इज़ मैग्निफिशेंट चिल्ड्रन. अगर आप लोग कभी जाने का मौका मिले और अगर आप देखोगे तो रियली यू विल बी सरप्राइज. एट दैट टाइम देयर वेर नो एनी काइंड ऑफ बिग मशीन्स. विद द हेल्प ऑफ हैमर एंड सैचल लोगों ने इतने बड़े बड़े काविंग को जो है एग्जिस्टेंट किया. ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी जो है बात है. So, Elephanta cave near Mumbai, Udaygiri and Bagh near Gwalior, Bhubaneswari near Orissa, Khandgiri and Nilgiri, famous specimen of the caves architecture of the Gupta period. Khamba Lida, that is the Gondal in Gujarat, Dhank, Rajkot, 3 caves of Junagadh, Talaja, Sana, caves are also found. The cave inscription of Asoka have been carved. The well of the cow of Badar mountain 16 km away from Gaya. The description worthy the chaityas done by Ashoka, caves Assam and Darjeeling, Sudama cave of Bihar and the cave of Sita are well known cave architecture. Detailed information of Ajanta Ellora cave that we will study in the chapter number 6. Really उसको पढ़ना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है. इतने अच्छे अच्छे इंस्क्रिप्शंस उसके अंदर हैं. अगर मैं आप लोगों को मुंबई के पास में जो एलिफेंटा केव है अगर उसकी भी अगर बात करूँ, वहाँ पे त्रिमूर्ति की जो बहुत मैग्निफिशेंट मूर्ति बनाई हुई है और उसके ऊपर लाइट की इतनी ज़बरदस्त असर होती है कि आप लेफ़्ट और राइट में अगर लाइट मूव्स कर दो तो ऑटोमेटिकली जो फेस है गॉड के उसके जो है पूरे के पूरे एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं. तो यू कैन जस्ट इमेजिन कितना ज़बरदस्त उन्होंने उसको पर्सोनिफाई किया होगा. यू कैन गेट आइडिया विद दैट. Next is the cave of Junagadh. There are many groups of caves in Junagadh. Groups of Bapravya cave. This cave situated in the Bapravya Mutt. It is in the 3 layers increasing each of right angles. There are 16 caves. Out of them 4 are first time, 7 in second and 5 in the third. Possible they
carved during 1st and 2nd century AD. They are double storied in seeing the remain, say one can say the might have been carved during the end of 2nd century and beginning of the 4th century. तो उनको उनके स्ट्रक्चर को आर्किटेक्चर को देखकर आप अलग अलग टाइम पीरियड का अंदाज़ा लगा सकते हो. केव्स ऑफ खापरा एंड केडिया, caves of Kund on seeing remain can be said they were floored cave. It might have been carved in 3rd century. There are the 20 pillars in there and ruined now. Next is the Khambaleda cave. It is discovered in 1959, means very recently, not more than 60 years. They are situated in the Khambaleda near Gondal, 70 km from the Rajkot. 3 of them are remarkable. Chaitya Gruha and Stupa is situated in the middle of this. Figures of Bodhisattva and statue of devotees are standing in both the side of entrance path surrounded by the tree, and they are 2nd or 3rd century. Next is the Talaja cave. Mountain of Talaja is situated near the mouth of Shatrunji river in Bhavnagar district. It is famous pilgrimage. Talajwagiri, 30 caves have been carved stone with huge gate. Mandap and Chaitya Gruha are the best example of the sculpture and protection point of view. Cave architecture of Buddhist region belongs to the 3rd century AD. Sana cave. This cave is situated. See, all these cave are related to Gujarat. आप लोगों को एग्जाम में frequently a question पूछता है, write a short note on the caves of Gujarat. तो इसमें ये सना, ढाक, जहांगीर गृह और खापरा कोडिया, ये सब के नाम आपको मेंशन करने हैं. Just keep in your mind. So Sana cave. This cave is situated on the top of the Sana mountain of the Vanni village, Una Taluka in Gir Somnath district. These caves are spread on the Sana mountain and bee hives. उसका स्ट्रक्चर वैसा है. ढांग केव, ढांग गिरी इज सिचुएटेड इन द ढांग विलेज ऑफ उपलेटा तालुका एट राजकोट डिस्ट्रिक्ट. दिस इज कंसिडर्ड that the might have been built on the beginning of 4th century. फिर है जिंगर जिंजूरी झार. There are many Buddhist caves in the west of the Dhak, about 7 kilometers Siddhar in the village Jinjuri Jhar. It is considered that they have been built in the 2nd century. Next is the Khapra Kodia caves of Kutch. These caves are situated at the top of mountain near Old Pathgad and the Lakhpat Taluka of Kutch. There are 2 caves are discovered by the Keka Shastri in 1967. You should know that Keka Shastri was a great Sanskrit scholar. Caves at a Kalia Dungar. It is also in the Bhuj. These 3 caves are the Kalia Dungar in the Jangadiya Taluka. Okay, it is in Bharuch district. There are the best old architecture specimen of the Buddhist religion. Architecture of these caves is moreover in the 11 feet high statue of lion with 2 bodies and 1 mouth is formed in the pillar can have carved, which is single rock. फिर chariot temple. Mostly इस टाइप के टेम्पल बच्चों आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलेंगे जिनका पूरा स्ट्रक्चर चैरियट स्ट्रक्चर में रहता है. बराबर है. नो डाउट कोणार्क का टेम्पल भी चैरियट स्ट्रक्चर में, लेकिन ये जो है इट इज़ अ स्पेशलिटी ऑफ द साउथ इंडिया. खास करके महाबलीपुरम में जो टेम्पल्स मिले हैं, बराबर है, वो आपको इस टाइप में मिले. एंड दे आर कार्व्ड विद अ सिंगल रॉक. एक ही रॉक को कट करके बनाए हैं. द यूनिक फीचर ऑफ पल्लवा डायनेस्टी बेसिकली रिलेटेड टू तमिलनाडु. Age can be seen in the famous chariot temple of the South India, which is carved out of the single rock. Kailashnath temple of Kanchi and temple of Vaikunt Perumal are best example of architectural art. Apart from the above mandapas, the Mahabalipuram and the chariot temple of the Mahabalipuram are world famous. ये वही महाबलीपुरम है जहाँ पे जो है कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी जी जो है शी जिनपिंग को लेके गए थे. ध्यान होगा आप लोगों को, व्हेन ही बिकम द सेकंड टाइम इनिंग, दूसरे टाइम में जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तभी. Each of them is rock cut temple. These chariot are named after the name of Pandavas. Chariot of Dharmaraja means Yudhishthir is the biggest one and the chariot of Draupadi is the smaller. लेकिन अब ये भी जो है मोस्टली समुद्र में सबमर्ज हो गए क्योंकि वहाँ पे हमेशा जो है सुनामी वगैरह का खतरा रहता है. Next, temple architecture.
Many famous temple architecture are seen height pedestal and the pinnacle with the ladder, but some are flat with the pradakshina path enriching the garbhagruha. Garbhagruha is a place where chief deity has kept, यानी कि जहाँ पे मुख्य भगवान को जिस जगह पे रखा जाता है, that place is known as the garbhagruha. The Bhumarga Shiv temple near the Jabalpur is the temple. Larkhan in Bijapur district. Copper statue of Lord Buddha in Nalanda, Sultanganj, and the Jain temple of Mathura are the unique specimen of architecture and sculpture. There are great contribution of the Pallava king temple constructed in Kanchi. Kanchi is also in South India. Capital city of Pallava are very famous. Tanjore is the capital of Chola dynasty. राजा चौला का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बार हम लोगों ने उसको डिस्क्राइब भी किया. The great Brihadeshwar temple was the first temple constructed by Raja Raj Chola. You will be surprised children, उस मंदिर को इस तरह से बिल्डअप किया गया है कि किसी भी टाइम में ऑल ओवर द ईयर उसका शेडो कभी भी जमीन में गिरता नहीं है. It is about 200 meter high and extraordinary temple of architecture, India. Now let's talk about the Gopuram. Gopuram means the entrance of the टेम्पल. मंदिर का जो एंट्री है उसको गोपुरम बोलते हैं. यूजुअली आप लोगों ने सोमनाथ और द्वारका में देखा होगा. अपने नॉर्थ इंडिया में कैसा होता है कि मंदिर का एंट्रेंस एकदम छोटा होता है, लेकिन मंदिर का जो ये है डोम है वो एकदम ऊंचा होता है. लेकिन साउथ इंडिया में बिल्कुल उल्टा होता है. साउथ इंडिया में एंट्रेंस एकदम हाइट होता है और मंदिर का डोम एकदम छोटा होता है. तो ये वहाँ के गोपुरम की खासियत है. और दूसरा, गोपुरम लगभग 7-8 स्टोरीड बिल्डिंग्स होती हैं और उनके ऊपर इतना ज़बरदस्त बारीक काविंग काम किया जाता है कि आप जो है इमेजिन नहीं कर सकते. अगर आप लोगों को कभी मौका मिले एंड इफ़ यू विल गो इन साउथ इंडिया, स्पेशली इन मदुरई, तो वहाँ पे अगर आप मीनाक्षी टेम्पल के गोपुरम देखोगे, रियली इट इज़ मैग्निफिशेंट. बराबर है, उसका कोई वही नहीं है, क्या बोलते हैं, कोई कंपैरिजन ही किसी के साथ आप नहीं कर सकते हो. They built high outer wall and the beauty decorated gates outside the temple. The gates of this temple is known as the Gopuram. Means the entrance of the temple is known as the Gopuram. The artistic glory of Gopuram has become more popular than the temple. Gopuram of the Kanchi and Madurai gives the aesthetic pleasure even today in the viewed of distance. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गोपुरम बराबर है किस तरह से जो है इसको बिल्डअप किया गया है. You will get the idea of that. इसके भी ये जो आप अभी यहाँ पे देख रहे हो, इसमें जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा मंदिर का स्ट्रक्चर ऊपर देखो यहाँ पे दिया हुआ है और उसके नीचे उसको पूरा डिस्क्राइब किया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे और उसको क्या कहते हैं. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इन ओडिशा. ये भी अपने आप में एक बहुत ही मैग्निफिशेंट टेम्पल है. बराबर है. और ऐसा कहा जाता है कि जिस समय में इसको बिल्डअप किया गया था, भगवान सूर्य की मूर्ति को इस तरह से सेटअप किया था कि पूरी की पूरी मूर्ति हवा में जो है अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है क्या कहते हैं वो खड़ी रहती थी. इस तरह से उसको जो है सेटअप किया गया था. ये अपने आप में एक मैग्निफिशेंट बात है. Which is one of the famous chariot temple. Brihadeshwar temple in Tanjore has 13th story gopuram. Okay, metallic and stone idol are the age have the special characteristics features. Bronze statue of Nataraj is the best example of idol sculpting at that time. Chola temples have their own sculpture and age in field of the art and architecture. Meenakshi, one of the huge temple India in the Madurai spread of the vast area. हम लोग लकी रहे, हम लोगों को बच्चों वहाँ पे जाने का मौका मिला. जब 2010 में नेशनल लेवल QC था तो फर्स्ट नेशनल लेवल QC की स्टार्ट ही जो है मदुरई से हुई थी. एंड एट दैट टाइम लकीली हम लोगों को जो है वहाँ पे जाने का मौका मिला एंड वी विजिटेड दैट टेम्पल. रियली इट इज़ मैग्निफिशेंट. इफ़ यू विल गेट एनी टाइम, अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर आप वहाँ पे विजिट करना. आपको आइडिया आएगा कि हमारा जो आर्किटेक्चर स्कल्पचर था वो कितना ग्रेट था. आज के ज़माने में हमारे पास में इतनी सारी मशीन्स हैं, इतने सारी चीज़ें, और हम लोग जो है इंजीनियरिंग कर पाते हैं. उस ज़माने की इंजीनियरिंग अपने आप में जो है मैग्निफिशेंट थी. ऐसी कोई उन लोगों के पास में मशीन नहीं थी. एंड यू विल बी सरप्राइज, पूरा का पूरा जो मंदिर है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है. एंड यू विल बी सरप्राइज, दूसरी मज़ेदार बात कि वहाँ पे 1500 किलोमीटर के अंदर कहीं पे भी ग्रेनाइट के स्टोन नहीं है. तो वो लोग इतने दूर से ग्रेनाइट कैसे लेके आए होंगे और कैसे उसको बिल्डअप किया होगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक आप यूँ बोल सकते हो कि भाई एक पहेली है, एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है.
In the medieval period of Khajuraho was the capital city of the Chandela rules. It is in the middle of India, Madhya Pradesh. Bundelkhand Chandela rules built the beautiful temple in Khajuraho. The style of pinnacle means the dome of the temple, varies from the other Khajuraho temple are the finest temple. फिर उसके बाद में जो है जैन टेम्पल की बात करते हैं. बेसिकली जो है आपको ये माउंट आबू में देखने को मिलेंगे. इसके अलावा अपने गुजरात में पालीताना में देखने को मिलेंगे और अहमदाबाद में हटी सिंह में हटी सिंह का जो देरा है वहाँ पर आपको जैन टेम्पल देखने को मिलेंगे. बेसिकली दे आर कॉल्ड द देरासर. Jain temples are found in the various places of India. Vaibhar of Rajgruha, okay, it is in Bihar. Okay, Vipulachal, Ratnagiri, Udaygiri and Samadgiri are the 5 Jain temples. They are सिद्ध क्षेत्र, बराबर उसको सिद्ध क्षेत्र कहा गया है. पिलग्रिम ऑफ द समेत शिखर जी बिहार इज द सिद्ध क्षेत्र. पिलग्रिम ऑफ समेत शिखर जी बिहार इज द नोन एज द मधुवन. आदिनाथ भगवान एंड अदर 20 तीर्थंकर. आदिनाथ यू नो दैट इज द फर्स्ट जैन तीर्थंकर. जैसे भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर हैं तो भगवान आदिनाथ पहले तीर्थंकर. ऐसे 24 तीर्थंकर जो है जैन धर्म में हुए हैं. अदर 20 तीर्थंकर आर द निर्वाणा. उन सब ने वहीं पे अपना जीवन का त्याग किया, निर्वाण लिया और उनकी याद में वहाँ पे बहुत बड़े बड़े देरासर बनाए गए हैं. देयर आर टेम्पल ऑफ द अभिधान नाथ जी, पार्श्वनाथ जी, भगवान महावीर रिच्ड हियर एंड द मैनी सेजेस अटेंड द सैल्वेशन मीन्स द मोक्ष, यानी उन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय वहाँ पर निकाला है. ओके, देयर इज अ जैन टेम्पल इन द पालीताना, इन द शंखेश्वर टेम्पल इन पंचेसरा इन गुजरात, जैन टेम्पल ऑफ द दिलवारा माउंट आबू. वो तो अपने आप में मैग्निफिशेंट है. ऐसा लगता है किसी ने ये वैक्स होता है ना मोम, उसको काविंग करके बनाया क्योंकि पूरा का पूरा वाइट मार्बल से बनाया हुआ है. आप लोगों को मालूम होना चाहिए वाइट मार्बल इतना सॉफ्ट होता है कि उसमें आप जोर से अगर हथौड़ी छीनी चला दो तो वो ब्रेकअप हो जाता है. तो कितनी उन लोगों ने जो है बारीकी से उसके ऊपर काम किया है, वो देख के आपको आश्चर्य होगा. ये भी एक बहुत बड़ा मौका है. अगर आपको कभी भी माउंट आबू जाने का मौका मिले तो डेफिनेटली आपको दिलवारा टेम्पल देखना चाहिए, जैन टेम्पल देखना चाहिए. यू विल फील प्राइड कि हमारे लोग कितने ग्रेट थे. Artistic skill and sculpture in the point where especially the Delwara temple of Abu Where have been constructed by the minister Vimal Shah or the Vimal Vasai and the other minister Vastupal. ये जो है सबके सब जो अपने राजा थे, क्या नाम है इनका, मैंने देखो मेरे को दिमाग से नाम निकल गया, जयराज सोलंकी वगैरह जो किंग थे, ये उन लोगों के मंत्री हुआ करते थे ये सब के सब. ओके, लूनावाशी आर द एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ स्कल्पचर. दीज आर कंस्ट्रक्टेड विथ वाइट मार्बल. दे आर फेमस इन इंडिया वेल abroad because of their attractive, minute and artistic work sculpture. The temple are wonderful and memorable gift of the Jain religion, the Indian culture. Jain temple and worldwide famous due to their art and sculpture architecture. Sun temple of Modhera, it is in Gujarat. अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि ऑल ओवर इंडिया में बच्चों जो है 3 जो है टेम्पल्स हैं. सन टेम्पल, एक जो है मार्तंड टेम्पल है जो जम्मू एंड कश्मीर में है. अच्छा, दूसरा अपने उड़ीसा में है कोणार्क में और तीसरा अपने मोढेरा में. अच्छा, ये तीनों जो है इस तरह से बिल्डअप किए गए हैं कि इन तीनों को अगर आप लाइन टू लाइन ज्वाइन करो दे मेक द आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ ईच अदर. एक दूसरे के साथ में आइसोसेलेस ट्रायंगल फ्रेम करते हैं, बराबर है. और दूसरी मज़ेदार बात यह है कि ये तीनों टेम्पल में से जो है अभी ये 2 ही बचे हैं. मार्तंड टेम्पल को तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है एंड वंडर्स लोगों ने, तो वहाँ पर तो सिर्फ रुइन ही है. लेकिन ये तीनों टेम्पल जो है मैग्निफिशेंट अपने ज़माने में आर्किटेक्चर को लेकर बहुत ही ज़्यादा जो है फेमस रहे हैं. तो हम लोग यहाँ पे मोढेरा की बात करें. मोढेरा टेम्पल इन गुजरात महाराष्ट्र महेसाना डिस्ट्रिक्ट वॉज बिल्ड इन 1026 ड्यूरिंग द रीजन ऑफ सोलंकी भीमदेव फर्स्ट. ओके, इट इज़ द टेम्पल विद द जेम वॉज स्टर्ड द मिडल ऑफ द क्राउन ऑफ द सन गॉड. मतलब उसको अच्छा, ये जो टेम्पल है ये बिल्कुल एग्जैक्टली लाइन ऑफ
कैंसर है उसके ऊपर बिल्डअप है। तो बच्चों जब सूरज की पहली किरण गिरती है तो ये सीधा मंदिर पे गिरती थी। तो पुराने ज़माने में जब मंदिर में भगवान की मूर्ति हुआ करती थी तो उनके ऊपर एक डायमंड का ये लगाया था उनके क्राउन में, तो जैसे उसके ऊपर गिरती थी पूरा का पूरा मंदिर जो है रोशनी से भर जाता था। द एंट्रेंस गेट ऑफ द ईस्टर्न साइड ऑफ द टेम्पल इज कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे दैट फर्स्ट रे ऑफ सन फॉल डायरेक्टली टू द जेम एंड बिकॉज ऑफ द एंटायर स्कैटन इज लिट अप। बराबर है, पूरा का पूरा चमक जाता था, क्रिएटिंग द divine atmosphere. 12 different images of the sun god and the chariot sculpture is seen in this temple. The carving of the temple is done Iranian school of art. It is basically Persia. Okay, there is a 108 small surrounding outside the tank means lake, एक छोटा सा तालाब भी है, which created the pleasant sight of dusk and awe. मतलब सुबह शाम वहाँ पर जो है बहुत सुंदर नज़ारा खड़ा होता है। फिर है मेडिवल आर्किटेक्चर। ये तो हम लोगों ने पुराने ज़माने की बात की। अब मेडिवल आर्किटेक्चर की अगर हम लोग बात करें तो मोस्टली जो है जो लोग मुस्लिम इन्वेंटर्स इंडिया में आए और उन्होंने जो है जो भी आर्किटेक्चर यहाँ पे बिल्डअप किया तो दैट पीरियड इज़ नोन एज द मेडिवल आर्किटेक्चर। इसके अंदर खास करके गुलाम डायनेस्टी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में जो है ढाई दिन का झोपड़ा करके मस्जिद बनाई है, वो अपने आप में मैग्निफिसेंट है। सिमिलरली आपका जो दिल्ली में कुतुब मीनार वगैरह ये सब उसके अंदर जो है मेनली जो है इन्वॉल्व होते हैं। ओके, अब यहाँ पे अलग अलग किंग्स लोगों के ये दे रखे हैं। बंगाल का जो है आर्किटेक्चर दे रखा है। इसी तरह से जौनपुर में अटाला मस्जिद है, बहुत फेमस है। मालवा में बहुत बड़े बड़े महल है। मांडू वगैरह जगह पे जो है टॉम्ब ऑफ होशंग साहब बहुत फेमस है। ओके, ये सब आप लोग ज़रा पढ़ना, आप लोगों को आइडिया आएगा। फिर अपने गुजरात के अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो ये भी अपने आप में मैग्निफिसेंट है। सैयद सिद्दीकी जाली वगैरह अगर आप अहमदाबाद में देखो, अहमदाबाद में रानी सिप्री की मस्जिद देखो, खास करके हमारे यहाँ पे जो है बहुत बड़े बड़े ये वाव जिसको हम लोग स्टेप वेल बोलते हैं वो बिल्डअप किए गए, वो अपने आप में मैग्निफिसेंट है और उसके कंपेयर में कोई नहीं आता। टेंपल की अगर हम लोग बात करें तो सोमनाथ टेंपल और फिर जो है द्वारकाधीश का टेंपल अपने आप में मैग्निफिसेंट है। उसके अलावा डाकोर में, मोढेरा में आपको अलग अलग प्लेस में, अंबाजी में आपको अलग अलग टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, फिर जैन टेंपल की बात करें, स्टेप वेल गुजरात के अंदर बहुत ही फेमस है, अलग अलग जगह पर है। रान की वाव बहुत ही फेमस है। सो ये सारी की सारी जगह जो है अपने आप में मैग्निफिसेंट है। ये यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें जो है मस्जिद का स्ट्रक्चर कैसा, बेसिकली दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ जामा मस्जिद, बराबर है, विच इज़ इन दिल्ली, ओल्ड दिल्ली। तो वो जो है यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है। तो आप इसको जो है थोड़ा रीड करेंगे पीछे का पार्ट, क्योंकि वहाँ पे जो मेन पार्ट था आई एक्सप्लेन यू दैट। ओके, एंड वॉट एवर इज रिमेनिंग लिटिल रीड, यू ऑल्सो टेक लिटिल एफर्ट्स सो यू विल गेट बेटर आइडिया अबाउट आवर आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। ओके, यहाँ पर जो है हम लोग ये चैप्टर ख़त्म कर रहे हैं। आप लोग अंडरस्टैंड करना है इसको, वॉट एवर आई एक्सप्लेन यू, इसको जो है रिवाइज करना, लिसन इट प्रॉपरली, देन यू विल गेट अ बेटर आइडिया। ओके, सी यू। नहीं जट नहीं है भाई। ये कहाँ पे है, ये भी नहीं गया।